This conference will now be recorded. Hello everyone, good afternoon. This is Praveen Thawan. Today we are going to start a new chapter. The chapter is 26, Interest and Present Value. Let's start. Let's begin from Kanishka Gupta. Are you ready, Kanishka? Please read the introduction part 26.1 article number. Yes, sir. People earn money to meet their day-to-day expenditures on food, clothing, education, entertainment, etc. Normally, we put aside a part of money earned for some expected and unexpected expenditures like marriage or a function in the family or hospitalization of some family member, etc. Sometimes we need a lot of money for various reasons like buying a house or a car, etc. If the money saved is not sufficient to meet these big expenditures, we borrow money from a bank or a money lender or a financial institution or some other agency. These institutions lend money only if we promise to return the borrowed money after a specified period of time. At the end of the specified period, we have not only to pay the money which we had borrowed, but also to pay some additional money for using the lender's money. In this context, we define the following terms. Okay, wait. Kanishka, very good. ये पैराग्राफ कितने लोगों ने पढ़ा और क्या क्या समझ में आया और क्या एक्सपीरियंस है ये थोड़ा शेयर करिए. Let's start from Sanskriti Agrawal. Please explain this paragraph. So the paragraph tells the importance of money in our day-to-day life, like we need money to buy food or water, etc. And like the types of expenditure, like there are big expenditures and small expenditures. Big expenditure include like buying a house or a car, and small expenditure are the day-to-day expenses. So we need to like save money as well for future. Okay. What about Archit? क्या आपको समझ में आया पैसेज? यस सर. जैसे बोल रहा है कि कभी कभी अपने को ज्यादा अपने पास जितना पैसा है उससे ज्यादा भी लग जाता है, तो अपन किसी वी बोरो द मनी फ्रॉम सम मनी लेंडर और बैंक, एंड while borrowing this money we don't have to just pay the principal amount but also the extra amount for using the lender's money. Wow, brilliant, very good. Sumitra, what would you say? Yes, sir. Yes, sir. So this paragraph talks about the importance of money, that where and how we need the money in our day-to-day lives, and if we don't have money, we have to borrow from others. And it also talks about many times that we have to borrow the money from others, and we have to pay interest to them. Good, very good. And Nikita, please comment something. Sir, in this stanza, it has told us about the importance of money and its daily uses and the amount of money we save. And if it's not sufficient to buy something, we need to take money from someone, and in return, we need to pay that. And it also states that we should always keep some money safe. Very good. Okay, from the next, काफी अच्छा explain किया सबने, काफी अच्छी understanding है इसको लेके. Now the next article is 26.2, some useful terms. Let's start from Aditi Bansal. Yes, some useful terms. In borrowing and lending money, the following terms commonly used. First is principal. The money borrowed by a borrower from the money lender is known as the principal. Second, interest. The additional money paid by the borrower to the lender for having used his or her money is called interest. Third, amount. The total money paid by the borrower to the lender at the end of the specified period is called the amount. This amount is equals to principal plus interest, where S equals to P plus I, where S stands for the amount, P for principal and I for interest. Then rate or rate of interest. What will be S here? What will be S here? S stands for the amount. Amount which we have to pay. Okay. Pay, which we have to After pay. including interest plus principal amount. तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है? किसी ने कोई
कभी आपके घर पे ऐसा हुआ हो, या कभी आपने कोई चीज फाइनेंस की हो, या कभी आपके घर पे ऐसा कोई टर्म यूज हुआ हो, क्योंकि आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो मनी बोरो करते हैं, लाइक मैरिजेस हो गया, या किसी ने कहा कि हाउस बाइंग हो, या कार, कुछ बिग एक्सपेंसेस जहाँ पे भी आते हैं, वहां पे जहाँ अनएक्सपेक्टेड भी होता है बहुत सारे एक्सपेंडिचर, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन और मेनी थिंग्स, ठीक है, तो वहां पे मनी बोरो करना पड़ता है। तो आपने कभी ये चीज सुना भी होगा कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या ईएमआई पे करना पड़ रहा है, या ये पे करना पड़ रहा है, आपने कभी सुना होगा आपके घर में या आपके आसपास में या कहीं पे भी, आपके आई मीन कभी आप शॉप जाओ या कभी आप मार्केट भी जाओ इवन, तो मार्केट वाले आपको ऑफर देते हैं कि ये लैपटॉप खरीद लीजिए, इसमें ईएमआई अवेलेबल है, इजी ईएमआई अवेलेबल है, लाइक दैट आपने काफी सुना होगा ये। इवन ऑनलाइन आप टेलीविजन पे भी आप इस तरह की चीजें एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते होंगे कि जहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है या परचेसिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो यू कैन बाय और परचेज दिस आल्सो इन ईएमआई। कभी न्यूज़पेपर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये नया आईफोन लॉन्च हुआ है, 1.5 लाख का आईफोन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस 1 रुपए दीजिए और आईफोन लेके जाइए, और वो आपको ईएमआई का ऑफर दे देगा वहां पे। तो इस तरह की चीजों से आप परिचित हैं? आपने कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया? जस्ट शेयर विथ मी, एनीवन? कनिष्का? No, sir. No, I mean, you have never seen any advertisement or television also, any like that, or shopping? No. Anyone? Please share your experience. Like anyone? संस्कृति? सर बाइक का देखा है न्यूज़पेपर में। बाइक का देखा है न्यूज़पेपर पे, क्या लिखा था बेटा बाइक पर? कार कार सर का, बताइए। 2500 रुपए ईएमआई थी उसकी। अच्छा, ओके। तो कभी आपने कैलकुलेट किया कि ईएमआई के साथ अगर हम परचेज करते हैं तो एग्जैक्ट वही प्राइस अमाउंट पड़ती है? लाइक अगर स्कूटर की प्राइस 75,000 है, तो ईएमआई के साथ कुछ ज्यादा पड़ता नहीं है कि सर, उतना वहाँ ही? पर एक परसेंटेज भी दिया रहता है। ओके, और कोई जो शेयर करना चाहे? क्या संस्कृति? The car. हाँ, कार, क्या हुआ कार को? नहीं सर, कार लेते हैं तो फिर डाउन पेमेंट करते हैं, फिर ईएमआई हाँ वगैरह रहता है। हाँ, अगर अगर हम कार खरीदने जाते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं, ये कहा जाता है कि आप ये इनिशियल जो अमाउंट है वो दे दीजिए, और फिर बाकी के जो अमाउंट है जो आप अभी पे नहीं कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में छोटे छोटे पीसेस में आप वो पे करिए, बट आपको कुछ इंटरेस्ट पड़ता है उस पर, ठीक है? सपोज अगर कार 10 लाख रुपीस की है और अगर आपने 5 लाख रुपीस डाउन पेमेंट किया, तो बच्चे जो 5 लाख रुपए वो फाइनेंस कंपनी के थ्रू हम जो है पेमेंट करते हैं। तो फाइनेंस कंपनी क्या करती है, आपको पीसेस में पैसे लेती है, ठीक है? और इस तरह से वो चलते रहता है। तो ये मेरे ख्याल से आप सब इससे फेमिलियर होंगे। ओके, एनी एक्सपीरियंस एनीवन है? अदिति, सुमित्रा, निकिता? सर मैसेजेस में भी आते रहते हैं ना कि हाँ, इतना वेरी गुड, वेरी गुड। ये तुम। हाँ, कनिष्का, तुम कौन से दुनिया में रहते हो? मैसेज देखो, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, हर जगह कहीं ना कहीं ये सारे मैटर्स मिल जाते हैं। यस, आई मीन नॉट नीड कि आपने कभी एक्सपीरियंस ही किया हो या उसको देखा हो, आप अभी काफी छोटे हैं। यस, सुमित्रा, एनीथिंग वुड यू लाइक टू से? Sir, no, sir. अदिति, एनीथिंग? सर मैंने शायद कहीं ऐसे देखा है ईएमआई वाला, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अच्छे से। ओके, चलिए ठीक है, फाइन। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं आपने वो चीज प्रैक्टिकली ये चैप्टर पढ़ने से पहले भी आप फेस कर चुके हैं। कुल मिला के बात ये है। ओके, नाउ लेट इस गो थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। सुमित्रा, पढ़िए। Yes, sir. Rate or rate of interest is the amount charged for the use of principal for a given length of time, usually 1 year. Rate percent. The amount charged for keeping 100 for 1 year is known as the rate per cent per amount. आगे If पढ़िए। 12 charge. Yes, sir.
If 12 rupees are charged for keeping 100 rupees for 1 year, then we say that the interest rate is 12% per annum. Thus we say that the interest rate or rate of interest is 8% per annum. It means that 8% is charged as interest in keeping 100 rupees for 1 year. Therefore, if 1 rupees is kept for 1 year, then interest charge will be 8 by 100, that is 0.08. This is called the decimal equivalent of 8%, and we can say that the rate of interest is 8.80 per annum or 8.80 per rupees annum. In general, if the rate of interest is r% per annum, then its decimal equivalent is r is equal to r upon 100. Throughout this text, we will denote interest on 1 rupees for 1 year by r and say that the rate of interest is r. The interest paid is proportionate to the amount borrowed and also to the period of time for which the amount is kept. More the amount and time, the more interest. Interest is also proportionate to the rate of interest. Thus, interest varies direct as principal, time, and rate. There are two kinds of interest, that is, first simple interest, second compound interest. Let us first learn about simple interest. हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए अभी ये कुछ इंटरेस्ट के बारे में और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। एनीबॉडी हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अर्चित। सर हम जो पैसा देते हैं हम उस पे जो एडिशनल मनी रहता है उसका परसेंटेज लगाते हैं और ये परसेंटेज वेरी करता है कि आप कितना मनी लिए हो और कितने टाइम तक वो मनी आपके पास है। तो इंटरेस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेट होगा, बिल्कुल उसके हिसाब से चलता है कि आपने कितना मनी, अमाउंट ऑफ मनी कितना आपने बोरो किया हुआ है और कितने टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी से 5 लाख रुपीज लिया है, सपोज आज मैंने किसी से 5 लाख रुपीज ले लिए, ठीक है, बोरो कर लिए, और अगर मैं उसको 1 वीक के अंदर पे कर दूं तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो 5 लाख रुपीज उसको बोलता हूँ कि आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा वो काफी ज्यादा बनेगा। अगर उसी को और एक्सटेंड कर दे, जैसे कभी आपने सुना होगा कि बहुत आम तौर पे रायपुर क्योंकि एक मेट्रो है तो बाहर के काफी लोग आते हैं और यहाँ पे लैंड परचेस करते हैं या ईएमआई पे घर खरीद लेते हैं सीधा सीधा कि कौन बनाए। बहुत सारे बिल्डर जो है वो सेल करते रहते हैं 75 लाख में, 1.5 करोड़ में, 50 लाख में, छोटे बड़े हाउस बंगलोज, ठीक है, हर तरह के। आपको इवन आप सिनेमा हॉल पे भी जाएंगे तो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ये देखिए ये क्या स्वर्ण भूमि वाला एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाता है। देन ईएमआई पे, तो वो काफी लंबे समय के लिए वो पैसा जो है वो बोरो किया जाता है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। एक बहुत हैवी उसका इंटरेस्ट बनता है, काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट बनता है, इंटरेस्ट का ही ह्यूज अमाउंट बनता है। तो काफी आई मीन वो बोलना चाहिए कि ये जो बिजनेस है वो भी काफी आजकल ग्रो कर रहा है, फाइनेंसिंग का बिजनेस। कभी आपने सुने होंगे बहुत सारे फाइनेंसिस कंपनीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट पे भी आप लोग देखते होंगे, कभी आप टेलीविजन देख रहे हैं तो इस तरह की चीजें आते रहती हैं। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं आपके अराउंड, ठीक है, जो आप जिनसे आप जिसको आप फेस कर रहे हो, वो आपके सिलेबस से, आपके कंटेंट से, आपके मटेरियल से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है प्रैक्टिकली। आगे चल के भी आप उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे आप भी। So let's understand simple interest, article number 26.3, and I would invite Nikita Agrawal, please read simple interest. Yes, sir. If interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, it is called the simple interest. It's in transaction involving simple interest, the principal on which the interest is computed remains unchanged throughout the term of the loan. Let us find the formula for simple interest. Let a sum of rupees P be invested or borrowed on a simple interest R per annum for the period of T years. Then interest on rupees 1 for 1 year is equals to R. Interest on rupees 1 for T years is equals to RT. Interest on rupees P for T years is equals to P into RT is equals to PRT.
Thus, the interest I on rupees P for T years at the rate of rupees R per annum is given by I is equals to PRT. The amount S and the end of the T years is given by S is equals to P plus I is equals to P plus PRT is equals to P I plus RT. Let us now use this formula to calculate interest on the given principal for a given time at a given rate and to find the amount. From I is equals to PRT, we obtain P is equals to I upon RT, R is equals to I upon PT, and T is equals to I upon PR. These Okay, cool. formulas may be used to find the principal P, interest R, and the time period T, respectively, when remaining two values are given. In the above formula, time T is in years and the interest rate is per rupee per annum. Therefore, if the interest rate is percent per annum, then we convert it into per rupee per annum by dividing it by 100. Okay, very good. Thank you so much, Nikita. Now let's read example number 1. मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. So Aditi Bansal, read example number 1. Yes, sir. Find the simple interest and amount when first principal equals to rupees 8,000, rate of interest is 6% per annum and time is 4 years. प्रिंसिपल 8,000 रुपए हैं. कहानी स्टोरी बनाते चलेंगे सारे लोग, ठीक है. Rate of interest 6%. कोई स्टोरी बनाइए इस पे, एक छोटी सी स्टोरी बना के इस क्वेश्चन को फ्रेम करिए अदिति. या हेजिटेट नहीं करेंगे आप लोग बहुत ज्यादा, ठीक है. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ठीक है. एक्सेप्ट द मनी, ठीक है. टॉक अबाउट द मनी, डोंट हेजिटेट अबाउट इट, ठीक है. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग एंड इंडियन फिनोमिना, इंडियन साइकोलॉजी यही होती है कि पैसों के बारे में या फाइनेंशियल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते. बट एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर subject, it's a branch of our subject financial mathematics, so we have to discuss it very frankly. Okay, now anyone please make any story. 8,000 rupees 6% rate 4 साल के लिए. Anyone make a story? Yeah, Archit, please, welcome. Sir, a worker came from another city and he wants to pay rent, so he take 8,000 from a money lender at 6 rupees per annum for 4 years. हाँ, वेरी गुड. कि 8,000 किसी को जरूरत पड़ी, अब उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें बताइए अर्चित. मनी 8,000 निकाल के 4 कर देंगे. हाँ बेटा, 8,000 का 6% निकाल के इंटू 4 कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा उसका. हाँ, 8,000 का क्या कर देंगे, रेट निकालेंगे 6% पे कितना, क्योंकि 1 रुपए पे आपको मालूम है कि 100 रुपए पे आपको 6 रुपए देने हैं, ठीक है. 100 रुपए रखने के लिए आपको 6 रुपए पे करने हैं, तो उसने तो टोटल 8,000 रुपए रखे ना, और वो भी कितने साल के लिए रखे, 4 इयर्स के लिए. तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है वो समझ में आ रहा है. 4 से, तो ये जो एक्चुअली में ये इंटरेस्ट जो है वो 4 गुना हो जाएगा. मतलब पहले ईयर के लिए रेट क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था फर्स्ट ईयर के लिए. फर्स्ट ईयर के लिए उसको 100 रुपए में 6 रुपए देना पड़ रहा था. तो 100 रुपए में 6 रुपए देना पड़ रहा था, मतलब 8,000 में कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको, 480 रुपीज. देख लो कितना फायदा है इस बिजनेस में, कि अगर 8,000 रुपए किसी को उधार दिए हैं डॉक्यूमेंट के साथ, और 1 साल बाद अगर वो लौटा रहे हैं तो 480 रुपए उसका इंटरेस्ट ही बन रहा है. 500 रुपए का खाली ऐसे ही मतलब फायदा हो गया. अब सेकेंड ईयर अगर 2 साल के लिए वो रखता तब कितना इंटरेस्ट देता, सिर्फ इंटरेस्ट कितना देता, इसका डबल 960 देता. सोचो, ठीक है, 2 साल के लिए इतना फायदा हो रहा है 8,000 पे. सोचो अगर ह्यूज अमाउंट होता है तब कितना फायदा होता होगा फाइनेंसिंग कंपनीज को. हाँ, दूसरे साल में भी तो 480 देगा ना. हाँ, तो भाई सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिला के 960 हो गया ना. हाँ सर. अब तीसरे साल 3 साल में उसको खाली इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, बहुत बारीकी से देख रहे हैं. देखो, किताब की भाषा में नहीं जाना है, बुक में बुकिश लैंग्वेज में या बुकिश कैलकुलेशन पे नहीं जाना है आपको. थर्ड ईयर पे कितने बन जाते बताइए, और जुड़ जाएंगे 1920 1440. 1440. देखो, ये इतने रुपए का सिर्फ ये इंटरेस्ट है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मनी है ये.
हाँ, अब उसने 4 साल के लिए हाँ, लिया, yes, फोर्थ ईयर पे कितना हो जाता? 1920। 1920 हो जाता है, लगभग 1900 रुपए 1920। ये एक्स्ट्रा अमाउंट 4 साल में वो पे करता। तो कितना पे करता वो? 8000 तो प्रिंसिपल देता ही देता, और इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है वो? इंटरेस्ट पे कर रहा है 1920। ये दोनों मिला के वो पे करता। तो ये इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात क्या है? प्रिंसिपल पे खैर उतना फोकस करने वाली बात नहीं, हो तो देना ही था, लेकिन बिजनेस कहाँ हुआ, कमाई कहाँ पे हुई? 10 में। ये जो परसेंट है इसी पे कमाई हुई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये 1900 लगभग 2000 रुपए उसने कमा लिए। देखो 4 साल के बाद अगर वो पे कर रहा है तो ठीक है, इतना इसको इंटरेस्ट मिल गया। सोचो, बैंक, इतने सारे बैंक हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, पब्लिक बैंक, इतने सारे बैंक्स हैं, इतने ह्यूज अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं लोग, इतने ह्यूज अमाउंट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक साथ करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे मार्केट चल रही है। समझ में आ रहा है? इसका प्रॉफिट, इसका बेनिफिट, इसका मार्केट कितना बड़ा है। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट के रेट के, इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट। आगे आप देखोगे कि आप लोग ये मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आपको बहुत प्राउड फील होगा। देन आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ोगे, तो वो सारी मैकेनिज्म आप लोग समझेंगे, बहुत डेप्थ में उसकी मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो उस बिजनेस को भी आप बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे। क्लियर है क्या ये सारी बातें मैं आपसे जो बोल रहा हूँ? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल 1 के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, बट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यस, संस्कृति अग्रवाल, रीड एग्जाम्पल नंबर 2। Divide rupees 43,500 in two parts so that the simple interest on the first, when deposited for 1 year at 9% per annum, and that on the second, when deposited for 2 years at 10% per annum in a bank, are the same. मीनिंग समझाइए। 43,500 को डिवाइड करना है, आगे समझाइए। Such that the simple interest on first year is 9% per annum and the second year is 10% per annum. ठीक है, क्या मीनिंग क्या है इसका? इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम होना चाहिए बोल रहे हैं, I1 I2 इक्वल होना चाहिए। एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मनी, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टी क्यों कर रहे हैं बताइए? कितने कितने समय के लिए जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है? पर एनम है ना? यस सर। Yes, एक sir. साल के लिए इंटरेस्ट की बात करें तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट? तो आपको पता है, यही चीज आप डिवाइड करना है आपको। ठीक है, दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो एक अमाउंट एक्स बनेगा और दूसरा अमाउंट क्या बनेगा? 43500 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या? ये प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 2 है। करिए, इंटरेस्ट कितना आ रहा है एक्स पे? एक्स का 9%, 9x/100। क्लियर है क्या? I1 निकाल लिया, I2 क्या हो जाएगा? 43500 माइनस एक्स, 9/100। इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। दोनों इंटरेस्ट बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में बोला दोनों इंटरेस्ट बराबर होने चाहिए, इस तरह से डिवाइड करो प्रिंसिपल को। I1 इज इक्वल टू I2, सो 9x/100 इज इक्वल टू 43500 माइनस एक्स, 9/100। क्लियर है क्या? Yes. गुड। तो एक का, सॉरी, एक का इंटरेस्ट कितना है? 9% नहीं है, ये वाला 10% था। 10% लिखा ना? Yes, sir. Yes, sir. For annum 9% and that on the second when deposited for 2 years at 10%। ठीक है, ये 2 साल के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. तो 29x is equal to 20 multiplied by
43500 कैलकुलेट करेंगे, x मिल जाएगा आपको, और x यहाँ पे मिल रहा है 30,000 मिल रहा है, ठीक है। Yes. x जो मिल रहा है वो 30,000 मिल रहा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया 43,500 को। फर्स्ट पार्ट हो गया 30,000 एंड सेकंड पार्ट हो गया 13,500, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या चीजें? ओके गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, सुमित्रा पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 3। अर्चित पढ़िए। Am I audible? एग्जाम्पल 3 अर्चित। सर मैं वो नेट से देख के पढ़ रहा हूँ ना, अभी बुक मेरी कहीं और है। तो डिवाइड हाँ 15,500 into two parts such that if one part be lent out at 15% per annum and the other at 24% per annum, the total annual income is 3,000. एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन। तो मतलब जो दोनों इंटरेस्ट लेने के बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है ऐड करने पे वो 3,000 है। गुड गुड गुड। तो अभी क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 क्या कर देंगे? इक्वल टू 3,000। 3,000। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? Yes. सुमित्रा आप पढ़िए एग्जाम्पल नंबर। Yes, sir. एग्जाम्पल 4 निकिता आप पढ़िए। On finding the principal when simple interest rate of interest and the time period are given. Example 4. What principal will amount to rupees 6450 in 1.5 years at 5% simple interest? क्या क्या दिए हैं, टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं और क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखेंगे। अमाउंट जो होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आरटी। टोटल 4 क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी एस फॉर अमाउंट है, अमाउंट आप समझ गए होंगे। सेकेंड है पी फॉर प्रिंसिपल एंड थर्ड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज द टाइम। इसमें से क्या क्या गिवन है ये बताइए निकिता। अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, Amount दिया है, टाइम दिया है। rate दिया है and time दिया है. फॉर्मूला पे डाल के पी निकाल लेंगे, ये समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी पी के लिए? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस आर टी। ठीक है, ये करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि आर और टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप टेक्निकल चीजें देखिए। आर और टी पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% नहीं लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। क्लियर है क्या? वाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, ये आर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। परसेंटेज में दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टाइम भी पता है आपको, 1.5 को बोला जाता है 3/2। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है ये? 15/200 RT आया। ठीक है, 1 प्लस RT कैलकुलेट कर लीजिए। पहले कैलकुलेट कर लीजिए 1 प्लस RT। 1 प्लस RT हो जाएगा 215 डिवाइडेड बाई 200। ये क्लियर है क्या? 1 प्लस RT। Yes, sir. ये बताइए 1 प्लस RT जो है वो लेस देन 1 है कि मोर देन 1 है? मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है? नंबर न्यूमरेटर बड़ा है ना बेटा, न्यूमरेटर लार्जर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। मोर देन 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो प्रिंसिपल Yes. क्या हो रहा है? हाँ, अमाउंट पे हम इस चीज को डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल होता है। अब ये अमाउंट दिया हुआ है आपको 6450। यहाँ से कैलकुलेशन बनाएंगे, अपने आप ये रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा, कितना आ रहा है आपका? 6,000 रुपीज जो है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल था। ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? एग्जाम्पल 5 पढ़िए अदिति।
Yes, sir. What sum lent out at 10% per annum simple interest would produce rupees 15,000 as interest in 5 years? क्या पूछा है क्वेश्चन में? So इसमें पहले 10% simple interest year. So what we have to find actually में प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे भी. Yes, sir. क्लियर है क्या? यहाँ पे भी प्रिंसिपल निकालना है. Yes, sir. S upon 1 plus RT. याद रहेगा फॉर्मूला. क्लियर है क्या? एग्जाम्पल 6 पढ़ेंगे अर्चित. Example 6. What sum lent out at 6.25% per annum produces the same simple interest in 2 years as 15,000 lent out at 5% produces in 1 year and 4 months. Okay. सर तो यहाँ I1 का पे प्रिंसिपल आपको निकालना है. हाँ I1 निकाल लो और I2 दोनों इक्वल होंगे. लास्ट में इक्वेशन आप बना लेना, ठीक है, और फॉर्मूला सेम लग रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये भी बन जाएगा Yes, आपसे. sir. एग्जाम्पल नंबर 6. ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 7. संस्कृति अग्रवाल. The simple interest on a certain sum for 2.5 years at 12% per annum is rupees 400 less than the simple interest on the same sum for rupees 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. Okay. Please explain the question. So the simple interest for 2.5 years is 12% per annum, which is 400 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. So the difference of I1 and I2 is 400, right? So I2 is bigger than I1. क्लियर है क्या? तो I2 माइनस Yes. I1 जो है वो 400 हो जाएगा. ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे. क्लियर है? बन जाएगा क्वेश्चन. प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. बाकी लोग बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. बच्चे लोग बताइए Yes. समझ में आ रहा है. चलिए निकिता नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 8. Yes, sir. The simple interest on rupees 60,000 for 9 months is rupees 2,700. Find the interest. हेलो संस्कृति क्लियर है कि क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो मैं अब आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ. काफी कुछ समझ गए आप लोग. एग्जाम्पल नंबर 17 तक आप ये पूरा सॉल्व करिए एक्सरसाइज. ठीक है, एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं. कल उसके बाद हम सीधे थर्सडे की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, sir.